رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ شائستہ اپنے گھر پر اکیلی تھی۔ اس کے تمام گھر والے اس کی پھوپھی کے یہاں شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے۔ اچانک گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے، چاروں طرف گھنگور اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے کی وجہ سے شائستہ کے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ اچانک اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے زوردار دستک دی۔ شائستہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں۔ بہت ہمت کر کے اس نے آواز دے کر پوچھا، کون؟ باہر سے شائستہ کی والدہ کی آواز آتی ہے، بیٹا دروازہ کھولو، ہم آئے ہیں۔ جب شائستہ نے اپنی والدہ کی آواز کو سنا، اسے مزید حیرت ہوئی۔ یہ لوگ تو شادی اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، پھر آخر اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ کیا بات ہے؟ شائستہ آگے بڑھ کر جیسے تیسے اندھیرے میں ہمت کر کے دروازہ کھولتی ہے۔ اس کے تمام گھر والے اس کے سامنے موجود تھے۔ وہ تمام لوگ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ان کے آتے ہی لائٹ بھی آ جاتی ہے۔ شائستہ ان سے پوچھتی ہے، آپ لوگ تو شادی میں گئے تھے، کیا ہوا؟ واپس کیوں آ گئے؟ پھر شائستہ کی والدہ نے کیا بتایا، شائستہ کے ساتھ کیا ہوا، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ کہانی شائستہ نام کی ایک لڑکی کی ہے، جس لڑکی نے اپنی زندگی کی ایک رات کا کچھ حصہ ایک ایسی مخلوق کے ساتھ گزارا جس مخلوق کو ہر کوئی بآسانی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا ہے۔ شائستہ سائنس کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ان دنوں شائستہ کے ایگزامز چل رہے تھے اور اتفاق سے شائستہ کی پھوپھی کے بیٹے کی شادی کا موقع آ گیا۔ تمام گھر والے شادی میں جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور کل شائستہ کا آخری پیپر تھا اور وہ بھی کیمسٹری کا۔ اس وجہ سے شائستہ چاہتے ہوئے بھی اس شادی کو اٹینڈ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ تھا، ایک تو کئی سالوں کے بعد خاندان میں ایک شادی ہو رہی تھی اور وہ بھی ایگزامز کی وجہ سے اس شادی کو اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ تمام گھر والے شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور شائستہ اکیلے گھر میں رہ کر ایگزام کی تیاری کرنا چاہتی تھی۔ شائستہ کی والدہ نے شائستہ سے کئی بار پوچھا کہ بیٹا ہم چلے جائیں گے، تم اکیلی گھر میں رہ تو لوگی نا؟ شائستہ نے کہا، مجھے اپنے گھر میں بھلا کس بات کا ڈر، میں اکیلے رہ لوں گی، امی آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہوں۔ آخرکار شائستہ کے والدین، اس کے بھائی اور بھابھی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ رات کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ شائستہ کی والدہ شائستہ کے کمرے میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ بیٹا شائستہ، میں نے تمہاری پسند کا کھانا تیار کر رکھا ہے، کھانا ابھی گرم ہے، ہم نکلنے والے ہیں، ہمارے جاتے ہی پہلے تم کھانا کھا لینا اور پھر کھانے کے بعد اطمینان سے پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ جانا۔ شائستہ نے کہا، جی امی۔ شائستہ کی والدہ نے پھر ایک بار پوچھا، بیٹا ہمارے چلے جانے کے بعد تم گھر میں اکیلے رہ تو لوگی نا؟ تمہیں اکیلے گھر میں ڈر تو نہیں لگے گا؟ شائستہ نے مسکرا کر امی سے کہا، امی میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں نا، آپ بار بار مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بھلا مجھے اپنے گھر میں کس کا ڈر ہوگا؟ آپ بالکل میرے لیے پریشان نہ ہوں، آپ اطمینان سے شادی میں جائیں۔ آخرکار تمام لوگ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ شائستہ سب کو الوداع کہتی ہے، گھر کا دروازہ بند کرتی ہے اور گھر کے اندر واپس آتی ہے۔ شائستہ کہتی ہے کہ امی نے کئی بار مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، بیٹا شائستہ ہمارے جانے کے بعد تمہیں اکیلے ڈر تو نہیں لگے گا؟ اور میں نے ہر بار امی کے سوال پر ایک ہی جواب دیا تھا، امی بھلا اپنے ہی گھر میں مجھے کس سے ڈر لگے گا؟ اور میں امی کو مطمئن کرتی رہی، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں۔ لیکن شائستہ بتاتی ہے کہ جب تمام لوگوں کو الوداع کہنے کے بعد میں دوبارہ گھر کی طرف پلٹی، اس وقت میں گھر میں اکیلی تھی۔ جب تک گھر کے اندر تمام لوگ موجود تھے مجھے کسی طرح کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ اب گھر میں جب میں اکیلی تھی اچانک میرے دل میں نہ جانے کون سا خوف پیدا ہو گیا۔ شائستہ کہتی ہے کہ میں نے بہت ہمت کر کے گھر کے تمام کھڑکی دروازوں کو بند کیا اور اس کے بعد کھانا کھانے کی نیت سے میں کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ جب کچن میں نے جا کر دیکھا تو چاروں طرف کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس خوشبو نے میرے من کو خوش کر دیا۔ پھر میں نے آگے بڑھ کر جب برتن کے ڈھکن کو کھولا تو اندر موجود سالن کو دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا۔ امی کی عادت مجھے
बहुत पसंद थी। अक्सर अम्मी एग्जाम्स के मौके पर मेरी पसंद का खाना बनाया करती थी। अब मैंने बर्तन में खाना निकाला, वहीं पर दस्तरख्वान बिछाकर मैं बैठ गई और मैंने खाना खाना शुरू कर दिया। शाइस्ता कहती है, मैं खाना खा रही थी और दिल ही दिल में अम्मी को दुआएं दे रही थी। मैं खाने से फारिग हुई, मैंने बर्तन को धोया, अपने हाथ को धोया। उसके बाद दोबारा मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने के इरादे से वापस आ गई। शाइस्ता कहती है, अभी मैं अपने कमरे में दाखिल ही हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। शाइस्ता कहती है, उस लाइट के जाने से चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा गया। अचानक मेरे दिल में दहशत पैदा हो गई। हर तरफ सन्नाटा था, अंधेरा था, मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। शाइस्ता कहती है, इससे पहले कि मैं अपने आप को संभालती, कुछ समझने की कोशिश करती, अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस दस्तक को सुनते ही मानो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैं सोचने लगी, इस अंधेरे में भला कौन आया होगा। शाइस्ता कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं करूं तो क्या करूं। मेरे दिल की धड़कनें तेज होती चली जा रही थी। ऐसा महसूस होता था मानो मेरा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। मैंने बहुत हिम्मत की, अपने आप को संभाला, अपने कमरे से बाहर निकली, आगे बढ़ी और आवाज देकर मैंने कहा, कौन कौन आया है। बाहर से मेरी वालिदा की आवाज आई, बेटा शाइस्ता दरवाजा खोलो, हम आए हैं। अम्मी की आवाज सुनते ही शाइस्ता को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, अरे ये लोग तो शादी अटेंड करने गए थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे आ गए। शाइस्ता कहती है, मैंने बहुत हिम्मत जमा की और जैसे तैसे उस अंधेरे में मैं घर के दरवाजे पर पहुंची। मैंने जब घर के दरवाजे की कुंडी को खोला तो मैंने देखा सामने मेरे अम्मी और अब्बू मौजूद थे। उनके पीछे अली भाई भाभी मौजूद थे और साथ ही उनकी बेटी सना भी खड़ी थी। वो तमाम लोग घर के अंदर दाखिल हुए। मैं हैरान थी देखकर। घर में उनके दाखिल होते ही अचानक लाइट भी आ गई। शाइस्ता ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप लोग तो शादी में जाने के लिए निकले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। अम्मी कहती हैं, बेटा शाइस्ता कुछ काम याद आ गया, इस वजह से हम वापस आ गए हैं, थोड़ी देर के बाद चले जाएंगे। शाइस्ता कहती है, भला ऐसा कौन सा काम था। अम्मी कहती हैं, बेटा क्या तुम्हें हर बात बताना जरूरी होता है। शाइस्ता ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। इसके बाद शाइस्ता अपनी अम्मी से कहती है, अम्मी चलो अच्छा हुआ आप लोग आ गए। आपके जाने के बाद लाइट चली गई थी और अंधेरे की वजह से मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती थी और अकेले मुझे घर में डर भी लग रहा था। शाइस्ता की वालिदा उसे अपने साथ लेकर जाती हैं। वो सब के सब हॉल में बैठ जाते हैं। शाइस्ता की वालिदा कहती हैं, बेटा तुमने खाना खा लिया था कि नहीं, खाना गर्म था कि नहीं। शाइस्ता कहती है, अम्मी आप लोगों के जाने के साथ ही मैंने खाना खा लिया, खाना गर्म भी था और सालन बहुत अच्छा बना था। अम्मी बहुत मजा आया। इसके बाद शाइस्ता के अब्बू कहते हैं, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। शाइस्ता कहती है, अब्बू पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है, अगर अली भाई थोड़ी सी हेल्प कर दें तो पेपर और अच्छा हो जाएगा। अली भाई अपने कमरे में अपनी बीवी के साथ मौजूद थे। फौरन निकल कर आते हैं और कहते हैं, ठीक है अपनी किताबें लाओ, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। शाइस्ता बहुत हैरान थी। आज से पहले कई बार अली भाई से कह चुकी थी, मुझे थोड़ा सा पढ़ा दें, थोड़े से सम सॉल्व करवा दें, लेकिन अली भाई उसे पढ़ाने के लिए कभी तैयार नहीं होती थी। आज अली भाई खुद आकर कहते हैं, अपनी किताबें लाओ, लाओ मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ। इसके बाद अली भाई की बेटी सना कहती है, अप्पी क्या मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं। इस पर शाइस्ता खुश हो जाती है, कहती है, हाँ सना अगर चाय मिल जाए ना तो मजा दुबाला हो जाएगा। सना चाय बनाने के लिए अंदर किचन में चली जाती है। शाइस्ता हॉल में बैठी थी, अली भाई उसको पढ़ा रहे थे, उनके वालिदैन भी वहीं आसपास मौजूद थे। भाभी अंदर अपने कमरे में जा चुकी थी। अली भाई एक एक करके उसको सवालों का जवाब बताते जा रहे थे और साथ ही उससे ये भी कह रहे थे, शाइस्ता इस सवाल को अच्छी तरह से समझ लो, कल एग्जाम में ये सवाल जरूर आएगा। शाइस्ता कहती है, वो तमाम सवालात जो मैं बहुत मुश्किल समझा करती थी, मेरी खातिर अली भाई ने उन्हें
इतना आसान कर दिया था, इतना आसान कर दिया था कि वो तमाम चीजें बासानी मुझे याद होती चली गई और मैं दिल ही दिल में सोच रही थी अगर वाकई यही सारे सवालात कल एग्जाम में आए तो मैं केमिस्ट्री का पेपर बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्लियर करूंगी। इसके बाद सना चाय बनाकर हाजिर हो जाती है। शाइस्ता कहती है कि मैंने देखा सना के हाथ में एक कप चाय थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उसने सिर्फ एक कप चाय क्यों बनाई थी? मेरे घर में तमाम लोग चाय पीने के शौकीन थे, फिर आखिर उसने एक कप चाय सिर्फ क्यों बनाया? शाइस्ता ने सना से कहा, बेटा तुमने अब्बू के लिए चाय नहीं बनाया, अली भाई के लिए चाय नहीं बनाया, अम्मी के लिए चाय नहीं बनाया, सिर्फ एक कप चाय बनाकर लाई हो। इस पर अम्मी कहती हैं, बेटा हमें तो शादी में वापस जाना है, तुम्हें रात भर जागना है और पढ़ाई करना है, तुम अकेले चाय पी लो। शाइस्ता कहती है, मैंने चाय पीना शुरू किया, अभी मैंने चाय का एक सिप लिया था, चाय इतनी लजीज थी कि मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी इतनी लजीज चाय नहीं पी थी। मैंने सना से कहा, बेटा सना तुमने चाय तो बड़ी जबरदस्त बनाई है, आखिर तुमने ये हुनर कब और कहां से सीखा? मेरी इस बात को सुनकर वहां मौजूद तमाम लोग मुस्कुराने लगते हैं। शाइस्ता कहती है, अचानक मेरी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है। मैंने देखा रात के तकरीबन 2:45 बज चुके थे। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, वक्त कितनी तेजी के साथ गुजर रहा है, एहसास भी ना हुआ 2:45 बज चुके हैं और मेरे घर वालों को शादी में जाना है। ये भला कब जाएंगे, कब आएंगे? शाइस्ता कहती है, अभी मैं ये सवाल अपनी अम्मी से पूछने वाली थी, अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस दस्तक को सुनते ही मैं हैरान रह गई। रात के 2:45 बजे, इस वक्त भला कौन हो सकता है? अभी मैं सोच रही थी कि मेरे अब्बू ने कहा, बेटा शाइस्ता जरा जाकर देखो तो सही कौन आया है। शाइस्ता कहती है, जब मैंने अब्बू की जबान से ये सुना मैं मजीद हैरान रह गई। आमतौर पर अब्बू जब भी घर में हुआ करते थे, दरवाजे पर अगर कोई दस्तक देता तो ये अब्बू की जिम्मेदारी थी, वो खुद बढ़कर दरवाजा खोला करते थे। रात के 2:45 बजे अब्बू मुझसे कह रहे थे, जाओ देखो तो सही कौन है। शाइस्ता कहती है, चूंकि अब्बू का हुक्म था मैं कमरे से निकली, बाहर आई, मैंने आवाज देकर कहा, कौन? बाहर से मेरी अम्मी की आवाज आई, बेटा शाइस्ता दरवाजा खोलो, हम आए हैं। शाइस्ता कहती है, अम्मी की आवाज को सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पलटकर हॉल की तरफ देखा, दरवाजे पर अगर अम्मी हैं तो अंदर कौन है? अंदर जब मैंने झांक कर देखा, हॉल में कोई मौजूद नहीं था। शाइस्ता कहती है, मैं तेजी के साथ आगे बढ़ी, बाहर से अली भाई की आवाज आई, अरे दरवाजा खोलोगी या रात भर हमें यहीं खड़े रहना होगा? शाइस्ता ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने देखा उसकी आंखों के सामने उसके वालिदैन, उनके पीछे अली भाई, भाभी और उनकी बेटी सना मौजूद थे। उन सबको देखते ही उस पर गशी तारी हो जाती है, बेहोश होकर दरवाजे पर गिर जाती है। वालिदा घबरा जाती हैं, कहती हैं, अरे मेरी बेटी को क्या हो गया? वालिद साहब कहते हैं, शायद शुगर लेवल लो हो गया होगा। अली भाई कहते हैं, लगता है हमारे जाने के बाद से लेकर अब तक मुसलसल पढ़ाई में लगी रही, इस वजह से तबीयत खराब हो गई होगी। अब शाइस्ता को जैसे तैसे उसकी वालिदा, भाभी और सना तीनों उठाते हैं, लाकर हॉल में लिटा देते हैं। शाइस्ता बेहोश पड़ी थी, काफी देर के बाद उसे होश आता है। शाइस्ता ने अपनी आंख को खोला तो देखा उसकी आंखों के सामने उसके तमाम घर वाले मौजूद थे। इस पर शाइस्ता अपनी वालिदा से कहती है, अम्मी आप लोग तो बहुत पहले ही आ गए थे ना? शाइस्ता की वालिदा कहती है, नहीं बेटा हम तो अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, दरअसल फूफी के घर में शादी थी ना, रुखसती होते होते काफी वक्त लग गया। हम तो चाहते थे कि जल्दी वापस आ जाएं, लेकिन फूफी आने नहीं दे रही थी। इतने में भाभी कहती हैं, बेटा तुम अकेली घर में थी, हम भी बार बार कह रहे थे कि हमें जाने दो, शाइस्ता घर में अकेली है, लेकिन कोई हमें छोड़ ही नहीं रहा था। शाइस्ता ने जब ये सुना उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने कहा, अच्छा आप लोग अभी आए हैं, तो जो लोग पहले आए थे वो कौन थे? इसके बाद शाइस्ता की नजर सना पर पड़ती है। वो सना से कहती है, बेटा सना तुम मेरे लिए चाय बनाकर लाई थी ना, बहुत लजीज चाय थी। इससे पहले कि सना कुछ समझ पाती, इनकार करती, शाइस्ता के वालिद साहब मौके की नजाकत को समझ जाते हैं, फौरन सना को इशारा करते हैं कि इनकार मत करना, हाँ कर देना। सना हाँ में सर हिलाती है, हाँ हाँ पी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आई थी। शाइस्ता कहती है, शुक्रिया बेटा। इसके बाद शाइस्ता के वालिद साहब अपनी बीवी
बीवी को यानी शाइस्ता की वालिदा को घर के कोने में ले जाते हैं और ले जाकर अकेले में उससे कहते हैं, लगता है शाइस्ता घर में अकेली थी, कोई मामला पेश आया है जिसकी वजह से वो डर गई है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। अब वो जो भी कहे कोई इनकार मत करना बल्कि हामी भर लेना। एक एक करके शाइस्ता के वालिद साहब घर के तमाम लोगों को सारा मामला समझा देते हैं। अब तमाम लोग शाइस्ता की हर बात पर हामी भरना शुरू कर देते हैं। रात काफी हो चुकी थी। अब शाइस्ता की वालिदा कहती हैं कि चलो अब हमें सो जाना चाहिए। तमाम लोग अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ते हैं। शाइस्ता की वालिदा कहती हैं कि बेटा आज तुम हमारे साथ सो जाओ। ये कहकर शाइस्ता को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। शाइस्ता के वालिद अपने कमरे में आते हैं, वजू करते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, चंद रकात नफिल नमाजें अदा करते हैं, फिर कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज फजर का इंतजार करते हैं। वो मुसल्ले पर बैठे थे, उनकी आंख लग जाती है। आंख लगते ही उन्होंने देखा वो कमरे में अकेले मौजूद हैं, अल्लाह का जिक्र पाक कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनके चेहरों से नूर की शुआएं फूट रही थी। शाइस्ता के वालिद कुरान शरीफ की तिलावत में मसरूफ थे। जब कुरान शरीफ की तिलावत से फारिग हुए, उन तमाम आने वालों में से एक बुजुर्ग आगे बढ़ते हैं, शाइस्ता के वालिद को सलाम करते हैं। शाइस्ता के वालिद साहब ने सलाम का जवाब दिया, फिर अपने हाथों को आगे बढ़ाकर उनसे मुसाफा किया। मुसाफा करने के बाद कहा, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं, आप लोग कौन हैं? आने वाले कहते हैं, दरअसल हम आपके इसी घर में रहते हैं, चूंकि आप तमाम घर वाले बहुत अच्छे हैं, सौम और सलात के पाबंद हैं, घर को साफ सुथरा रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, इस वजह से हम आपसे बहुत खुश हैं और हम कई सालों से यहीं रह रहे हैं। हम लोग आप लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देते। अलबत्ता शाइस्ता के साथ आज जो कुछ भी मामला हुआ है उसकी असल ये है, जब आप लोग घर से बाहर चले गए, वो अकेली थी, अचानक बिजली चली गई और बिजली जाने की वजह से उसके दिल में डर पैदा हुआ। जब हमने देखा कि बच्ची घर में अकेली डर रही है तो हमने फौरन उसके डर को दूर करने के लिए आप लोगों की शक्लें इख्तियार की और हम घर में वापस आ गए। और हम आए वैसे ही लाइट भी आ गई। हम उस वक्त तक उसका दिल बहलाते रहे जब तक कि आप लोग नहीं आए, चूंकि वो अकेली थी और अंधेरे की वजह से वो डर जाती। इस वजह से हमें मजबूरन ये काम करना पड़ा। मकसद किसी को डराना नहीं था बल्कि शाइस्ता के दिल से डर को दूर करना था। यही वजह है हम आप लोगों की शक्लें इख्तियार करके आ गए और उसके साथ थे। जब आप लोग आ गए तो हम यहाँ से चले गए। हम आपके दोस्त हैं, आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, हम कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद उन्होंने दोबारा मुसाफा किया और मुसाफा करके पलटे। शाइस्ता के वालिद साहब कहते हैं, मुसाफा करके उनका पलटना था, कमरे का दरवाजा उन्होंने खोला। अचानक एक तेज रोशनी आई। उस रोशनी की वजह से शाइस्ता के वालिद साहब की आंख खुल गई। जब उनकी आंख खुली तो सारा मामला उन्हें समझ में आ गया था। फौरन शाइस्ता की वालिदा को बुलाते हैं और बुलाने के बाद सारा मामला बता देते हैं। कल हमारी गैर मौजूदगी में शाइस्ता के साथ क्या हुआ था। शाइस्ता की वालिदा सुनती हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। घर वालों को ये बात नहीं बताई जाती है। सुबह शाइस्ता जब एग्जाम देने के लिए जाती है, एग्जामिनेशन हॉल में जब उसके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, वो ये देखकर हैरान थी। रात अली भाई ने जिन जिन सवालों की तैयारी करवाई थी वही सारे सवालात क्वेश्चन पेपर में लिखे हुए थे। क्योंकि वो पहले से तैयारी करके आई थी, उसने तमाम सवालों के जवाब बआसानी लिख दिए। नतीजा ये हुआ, केमिस्ट्री का वो पेपर जिसकी खातिर वो इतना परेशान थी, अपनी फूफी के बेटे की शादी तक को अटेंड नहीं किया था, उस एग्जाम में अच्छे नंबरों से वो पास हो जाती है। आज शाइस्ता एक कॉलेज में केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। उसके वालिदैन ने इस राज पर उस वक्त तक पर्दा डाले रखा जब तक कि शाइस्ता की शादी नहीं हो गई। शादी के बाद उसके वालिदैन ने उससे सारी बातें बता दी और बताया कि बेटा, जिस रात हम तुम्हारी फूफी के घर शादी में गए थे, हमारी गैर
मौजूदगी में हमारी तरह जो लोग तुम्हारे साथ कमरे में मौजूद थे, वो अल्लाह की वो मखलूक है जिसे आसानी के साथ हर कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। ये तो अल्लाह ने तुम पर अपना फजल करम फरमाया। अल्लाह तबारक तआला ने अपनी उस मखलूक को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम खौफ और दहशत से महफूज हो जाओ। शाइस्ता कहती है, रात के उस वाक़े को आज भी मैं याद करती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी सहेलियों को उस रात का किस्सा बयान करती हूँ तो उनके दिल में भी डर पैदा हो जाता है। साथ ही शाइस्ता ये भी कहती है, सना ने उस रात मुझे जो चाय बना कर दी थी, उस चाय का जायका आज भी मेरे अंदर मौजूद है। उस चाय के बाद मैंने वैसी चाय जिंदगी में कभी भी नहीं पी। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, वाकई जिन्नात अल्लाह की वो मखलूक है जो अल्लाह के नेक बंदे बंदियों को, नमाजियों को, पाक बाजों को, कुरान की तिलावत करने वालों को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इनका साथ निभाया करते हैं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको इस मखलूक के शर से महफूज फरमाए। अल्लाह हम सबको नमाजों की, कुरान की तिलावत की, अपने घरों को, अपने जिस्म को साफ सुथरा और पाक साफ रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।